Good morning, students. So today's topic is a part of instructional media used in teaching. Okay, so in last session I told you that AV8s are classified into three categories. Okay, first one was projected AVA, second was non-projected AV8s, third was uh, electronic or electronic AV8s. Okay, so in projected AV8s, we discussed that we have opaque projectors, slides, film strip, overhead projector, LCD panels, anapodoscope, and films that are used for video materials. These are the classification of projected AV8s. Okay, and in non-projected AV8s, cartoons, charts, diagrams, flashcards, photography pictures, bulletin boards, flannel board, and models, puppets, specimen. This comes under non-projected AVH. Means these cannot project the image of the teaching material. Okay, but they are helpful in teaching. So my today's topic is non-projected AV8s. Okay, so classification of non-projected AV8s. So basically the graphic aids, three-dimensional aids, display boards, print materials, audio aids, and activity aids. So under these, in graphic aids, we use graphs, charts, diagram, flashcards, poster, maps, and photographs. ठीक है, to make as of learning. ठीक है, is of learning. Second is three-dimensional aid. So for three-dimensional aid, we make specimen, models, and puppets. ठीक है, to make learning easy. Third is display boards. In display board, we use blackboards, whiteboards, and bulletin boards. And in print material, we use pamphlets, booklets, handouts, and leaflets. In audio aids, we can use radio, recordings, television. And in activity aids, we can use demonstration, field trips, and computer assisted instruction. ठीक है, सो नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स में हम ये सारी मेथड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिकली जो हम अपनी एजुकेशन में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे चार्ट्स का यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं, हैंडआउट्स यूज़ करते हैं, लीफलेट्स, ठीक है, और फील्ड ट्रिप्स. तो मैं यहाँ पे कॉमन को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो फर्स्ट इज़ पैम्पलेट. ठीक है, पैम्पलेट जिसे आप सभी ने देखा है. ठीक है, मीन्स कि जो भी आपने ड्यूरिंग हेल्थ टॉक में जो भी एक समरी टाइप की आपने क्या की है, एक बुकलेट बनाई है शॉर्ट. ठीक है, जिसमें कि ब्रीफ आप जिससे कि कोई इजीली पढ़ के आपके टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकता है. ठीक है, सो पैम्पलेट इज़ अनबाउंड बुकलेट है दैट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर दैट इज़ प्रिंटेड ऑन बोथ साइड एंड फोल्डेड इन हाफ. ठीक है, फोल्डेड है इन हाफ में, इन थर्ड और इन फोर्थ. ठीक है, थर्ड 3 पार्ट्स हो सकते हैं, इसके 4 पार्ट हो सकते हैं. और इट में कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू पेजेस दैट आर फोल्डेड इन हाफ एंड स्टेपल्ड एट द क्रेज टू मेक अ सिंपल बुक. सिंपल बुक की तरह ही है. ठीक है, जिसमें आपका होल टॉपिक क्या है ब्रीफली यहाँ पे आपने समझाने के लिए. ठीक है, ड्यूरिंग आप हेल्थ एजुकेशन के बाद इसका यूज़ करते हो, पर क्लास में ड्यूरिंग क्लास टीचिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर टॉपिक, अब जिससे कि स्टूडेंट्स को एक पूरा समरी आपके टॉपिक की पता चल जाएगी. ठीक है, तो पैम्पलेट्स हैं. अब पैम्पलेट्स का यूज़ क्या है. सो बेसिकली पैम्पलेट्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव पीपल समवट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई इशू आपने कम्युनिटी में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, लोगों को राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करना है और विन सपोर्ट फॉर अ कंपेन या एडवर्टाइज़ करना है किसी प्रोडक्ट्स का, तो बेसिकली पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, आपने देखा होगा मेनली हर जगह पे किसी को भी अगर एडवर्टाइजमेंट करना है अपने बिजनेस का तो पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो सेम ये से ही आपके पर्सपेक्टिव में है कि अगर आपको कोई मैसेज अगर जनरल पीपल को देना है तो आप पैम्पलेट्स का यूज़ करेंगे. सेकेंड नेक्स्ट है इसमें advantages and disadvantages of pamphlets. So first advantages are easy to understand, time saving है, as much information is provided in a single pamphlet, very cheap to produce. Disadvantage है कि success of pamphlet is not assured नहीं है. Objective of a pamphlet is accomplished only if it is distributed properly and is attractive enough. ठीक है, अगर properly attractive है या सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी आपका मैसेज कन्वे हो पाएगा. देन नेक्स्ट इज़ लीफलेट. ठीक है, तो लीफलेट सेम पैम्पलेट्स की तरह ही है. ठीक है,
लेकिन इसमें क्या, इट इज़ अ रिटन और पिक्टोरियल मैसेज ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, ठीक है। जैसे हमने पैम्पलेट में क्या किया था, पेपर के 3 या 4 फोल्ड्स किए थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, हमारा एक सिंगल शीट है पेपर की, बीच में भी फोल्डेड इन हाफ, जो कि बीच से हाफ फोल्ड में डिवाइड हो सकती है, या इसमें बोथ साइड में प्रिंटेड होता है। इट प्रोवाइड्स पीपल विद ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना के लिए, ठीक है। ब्रीफली अगर इन्फॉर्मेशन हमें देना है तब यूज़ करेंगे। इट कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड। एंड एडवांटेजेस हैं कि लीफलेट के फर्स्ट इट इज़ चीपेस्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, टाइम सेविंग है, इजी टू क्रिएट है, प्रेफरेबल ओवर अदर प्रिंटेड मटेरियल एज दे प्रोवाइड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ सिंगल शीट। एंड डिसएडवांटेजेस, इट डजंट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमें सिंगल पेज में इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ब्रीफली समझाएंगे। सो सेम है, सक्सेस ऑफ लीफलेट इज़ नॉट एश्योर्ड, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, अट्रैक्टिवनेस आर एसेंशियल। तो थर्ड इज़ हैंड आउट्स, ठीक है। हैंड आउट जैसे आपको क्लासेस में भी मिलते हैं, ठीक है। तो हैंड आउट्स आर अ शीट और शीट्स ऑफ पेपर containing topical information distributed to people attending a speech, लेक्चर और मीटिंग, ठीक है। तो कोई भी स्पीच, लेक्चर या कोई भी मीटिंग के बाद यानी जिसे हैंड आउट दिए जाते हैं, मीन्स के नोट्स एक तरीके से। तो फीचर्स ऑफ अ गुड हैंड आउट, गुड हैंड आउट के क्या फीचर्स है। फर्स्ट इज इट शुड बी मेड सच दैट पीपल पे अटेंशन टू द कंटेंट ऑफ द हैंड आउट, नॉट इट्स अपीयरेंस। सो हैंड, जैसे मैंने लीफलेट्स का आपको बताया और पैम्पलेट का आपको बताया, वो जितना अट्रैक्टिव होगा लोग उसको ज़्यादा, उसमें लोगों का टेंशन जाएगा। लेकिन हैंड आउट्स में बेसिकली ये होता है कि उसमें आपका कंटेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट शुड बी ईजी टू नेविगेट। सेकेंड इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस है कि हैंड आउट्स असिस्ट द ऑडियंस इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। एंड डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन बी ए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इफ अ लिसनर मिसेस द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ अ स्पीकर्स प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ बीइंग बिजी इन लुकिंग थ्रू द हैंड आउट, ठीक है। बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे अपने हैंड आउट्स अगर आपकी ड्यूरिंग जैसे लेक्चर है, लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या है, में एक डिसएडवांटेज ये कि जो लिसनर है उसका जो अटेंशन है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मिस हो सकता है, क्योंकि उसका सारा वो कुछ मिनट के लिए उस हैंड आउट्स को देखने में मिस कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ फील्ड ट्रिप्स। सो फील्ड ट्रिप्स को पता ही है, जिससे कि भी डिफाइंड इज द प्लान्ड और सुपरवाइज विजिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास टू गेट द फर्स्ट हैंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। सो फील्ड ट्रिप्स बेसिकली एजुकेशनल ट्रिप्स ही इसको बोलते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए, जिससे कि उनको एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स, लोकल स्कूल ट्रिप्स होते हैं, जैसे कम्युनिटी ट्रिप्स होते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ एम्स ऑफ फील्ड। इसका एम्स क्या है। सो फर्स्ट इज़ द मेन फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ दिस इज़ टू गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द थिंग, ठीक है। बेसिकली एजुकेशनल जो विजिट्स होती हैं, फील्ड ट्रिप्स होती हैं, उसमें स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली उन चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे जो वो बुक्स में रीड करते हैं, देन हम उनको वो इसका प्रैक्टिकली वे हम रियल थिंग सेटिंग में जाकर उनको दिखा रहे हैं, तो उनके लिए वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और उनको उसकी इन डेप्थ स्टडी हो जाती है, ठीक है। देन इसके एडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप। सो फर्स्ट इट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट सिस्टम, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड स्टूडेंट्स enthusiasm for field trips can be easily diverted for effective learning. And field trips can effectively supplement the classroom learning through application and review of field trip experience of student. And it also develop proper attitudes and social skill among the students. तो ये इम्पोर्टेंस है field trips का और एडवांटेजेस भी हैं। देन यूजिंग द field trip एज अ इंस्ट्रक्शनल यूनिट। अब field trip को एज ए इंस्ट्रक्शनल यूनिट हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ prepare yourself and students for field trip. Second, identify the main purpose of the trip. Third is take a manageable group of students for field trip, जितना आप मैनेज कर सकते हैं. And next is prepare a guide and activity sheet for the educational tour. आपके पास एक गाइड होना चाहिए और कोई एक्टिविटी शीट होनी चाहिए टूर की. इन्फॉर्म द प्रॉपर एजेंसी अबाउट द फील्ड ट्रिप. कभी भी कोई फील्ड ट्रिप होती है तो उससे पहले जिस एजेंसी के पास आप जा रहे हैं उससे पहले उनको एक लेटर सेंड करना पड़ता है जिसमें कि उनका अप्रूवल होता है. उसके बाद फिर हम प्लान करते हैं और स्टूडेंट्स को ये
मैनेजेबल करना है, ठीक है। जितने हम वहाँ पे पाई कर सकते हैं उतने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। तो देन लास्ट इज़ प्रिपेयर एक्टिविटी एंड वर्कशॉप शीट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट। तो जो नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स में मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ पैम्पलेट एक्सप्लेन किया है, लीफलेट एक्सप्लेन किया, देन हैंडआउट्स एंड फील्ड ट्रिप्स, ठीक है। जो कि आपकी टीचिंग का जो कंटेंट है, टीचिंग का जो टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप इन एविएट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आपकी जैसे आपने हेल्थ एजुकेशन देना है कि हेल्थ कोई मैसेज कन्वे करना है जनरल पॉपुलेशन को, तब आप हैंडआउट्स तब आप यहाँ पे पैम्पलेट्स को, ठीक है, या फिर लीफलेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकंड इसमें की है कि अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये क्या करेंगे, आप वहाँ के जनरल लोगों के कॉमन लैंग्वेज में इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि सभी अंडरस्टैंड कर सकें उसको। और ये है कि इसके अलावा अदर्स जो भी हम ये सब पोस्टर्स, ये पोस्टर डायग्राम्स यूज़ करते हैं, चार्ट्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे आते हैं हमारे नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स के क्लासिफिकेशन के अंदर में।